Very good morning. Good morning, sir. It is Sunday. Good morning. No respect of Sunday. Please repeat what you're saying. You said something about Sunday. Sir, no respect of Sunday since March 2020. There is no class on Sunday. This is the first class on Sunday. First day you're having class on Sunday. Okay, it is 9:04. Now let us start our. Sir, one question. Please say a little louder. I'm not getting your voice. If you want to say something. Sir, there is one question. Yeah. Sir, is the privatization the most better method for the development? No, this is not actually. This is not the issue of the GDI actually. No, sir, I am asking about development. Now let us discuss the issue when we complete our GDI. Then at Okay, last sir. you ask the question. At the end we'll discuss Okay, all sir. this. Okay, sir. If we begin with some other issue of discussion, then we'll not be able to complete the issue what we were discussing yesterday. Now I'm switching over to a new component. Is it visible to all of you? एक्सक्यूज मी सर Yes, Yeah, sir. yeah. Yes, sir. Yes, sir. सर कल एक क्वेश्चन पूछा था कि जो डेविएशन होगा जीडीआई का हाँ चलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ वो क्वेश्चन कल का है. I can discuss that question first, then I'll shift to GII. देखिए मैंने GDI को बहुत ब्रीफली देखा था. उसमें हमने ये कहा था कि जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि the GDI is often considered as a gender sensitive extension of HDI. That's why I was mentioning repeatedly, and you have seen also the equation that the concept of HDI in GDI also, which is gender sensitive extension of HDI. यानी जो GDI है वो वास्तव में HDI का ही लैंगिक संवेदनशील विस्तार है. क्यों ये शब्द मैं कह रहा हूं, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी. तो हमने कल कहा था कि हम HDI में टोटल पॉपुलेशन के रेफरेंस में एनालाइज करते हैं और GDI में हम लोग उसको मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन को सेग्रीगेट करके उसको अलग करके उनके रेफरेंस में मेल की उपलब्धियां मेल के HDI में, फीमेल की उपलब्धियां फीमेल के पॉपुलेशन के रेफरेंस में करते हैं. And there is a simple equation that the ratio of female HDI to that of male HDI is known as GDI. इतनी बात हम लोग कर चुके थे और उसके रेफरेंस में मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब हम लोग GDI की बात करते हैं तो उनको UNDP ने रैंक में नहीं रखा है लाइक HDI. So in HDI you have the ranking of the countries, but in GDI you don't have any ranking of the countries. Rather we have the groups. इस इंटरेस्टिंग चीज है समझना. मैंने कल भी इस पर फोकस किया था कि when you talk about GDI, there is no rank of the countries. Actually ranks are given in the HDI, not in the GDI. And in GDI we have actually 5 different groups which is actually based on the absolute deviation from gender parity in HDI values. ये सेंटेंस मैंने कल कहा था कि it is absolute deviation from gender parity in HDI values. तो बताइए कि ये जो सेंटेंस का जिन्होंने सवाल पूछा था
मैंने आपको चार्ट में दिखाया भी था, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ उसी स्लाइड्स को अगेन। क्या इसका मतलब है कि एचडीआई वैल्यूज की जब आप बात कर रहे हैं, एचडीआई वैल्यूज हम कह रहे हैं एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम जेंडर पैरिटी इन एचडीआई वैल्यूज, यानी एचडीआई के मूल्यों में लैंगिक समानता से निरपेक्ष विचलन, जेंडर पैरिटी से एब्सोल्यूट डेविएशन, निरपेक्ष डेविएशन मतलब विचलन है। इसका मतलब क्या हुआ बताइए मुझे, क्या समझते हैं इससे आप? जिन्होंने सवाल पूछा तो बताएं, क्योंकि आपने सवाल पूछा ना डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन हम कैसे मेजर कर रहे हैं, यही क्वेश्चन था आपका मेरे ख्याल से, तो बाकी लोग भी समझ लें इसे। The word was, the simple sentence मैंने लिखा था कि UNDP has divided the countries into 5 groups on the basis of absolute deviation from gender parity in HDI values. Now tell me, you understand very easily, what do you mean by HDI values here? Please answer if you understand. हम लिखा ना कि एसडीआई वैल्यूज में डेविएशन है, तो एसडीआई वैल्यूज से क्या क्या मतलब है यहाँ पर? सर जो हमारे 3 डायमेंशन थे। नहीं 3 डायमेंशन तो बात खत्म हो गई ना। हम 3 डायमेंशंस और 4 इंडिकेटर्स के बेसिस पर तो वैल्यूज हमारी आ गई हैं, अब हम फाइनली वैल्यूज की बात कर रहे हैं। तो एचडीआई वैल्यूज से यहाँ पर क्या मतलब है? वैल्यू 0 से 1 तक होंगे, उनके बीच में नो, वो तो फिर एसडीआई वैल्यू हो जाता, वैल्यूज थोड़ी ना होता। मैंने कहा था हर कंट्री की वैल्यू 0 से 1 के बीच होगी। यहाँ पे जो सेंटेंस हमने कल देखा था उसमें था डेविएशन फ्रॉम जेंडर पैरिटी इन एचडीआई वैल्यूज। पैरिटी मतलब समता, ये आप जानते ही हैं, हमने ट्रिपल पी में पैरिटी के साथ बार बार कहा था, यानी लैंगिक समता, जिसमें एसडीआई वैल्यूज के आधार पर लैंगिक समता से निरपेक्ष विचलन, एब्सोल्यूट डेविएशन। एनीवे, जस्ट आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, यहां पर एसडीआई वैल्यूज का मतलब है एचडीआई वैल्यू ऑफ फीमेल एंड एसडीआई वैल्यू ऑफ मेल। बात पहले स्पष्ट हुई कि नहीं? एसडीआई वैल्यू ऑफ फीमेल एंड एसडीआई वैल्यू ऑफ मेल। मैंने आपको लास्ट में इंडिया का प्रोफाइल दिखाया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि एचडीआई फीमेल वैल्यू 0.573 है। अपनी कॉपी पे आप नोट करें जरा इसे, तो हम बात करें उसमें। एसडीआई फीमेल वैल्यू 0.573 and HDI male value 0.699. HDI male value 0.699. I hope you have noted down the values. Is it okay? Yes, sir. 0.573 female HDI, 0.699 मेल HDI। अब आप हमें ये बताइए, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, क्या फीमेल HDI और मेल HDI इक्वल हैं, क्या बराबर हैं? नो सर। नो सर। नो। बताइए कि फीमेल HDI ज्यादा है या कम है एज कंपेयर टू मेल? सर कम है। बताइए फीमेल HDI मेल HDI के बराबर अगर होता इक्वल होता तो फीमेल HDI की वैल्यू कितनी होती अगर इक्वल होता? 1। नो भाई, 1 कहाँ हो जाता? 0.699 0.699। यस, अगर फीमेल की
वैल्यू भी इक्वल होती तो फीमेल भी मेल के इक्वल होता, फीमेल का भी 0.699 होता जो मेल का है, यही तो बात हुई। तो आपने कहा कि नहीं, फीमेल का 0.699 तो है नहीं, फीमेल का तो कम है, और फीमेल का वैल्यू है 0.573। तो बताइए कि दोनों में अंतर है या नहीं है? है यस सर। सर। है। है। कितना, जरा जरा कॉपी पे लिख के बताइए मुझे कितना डिफरेंस है, यानी 126, 0.126 सर। 0.126। Yes, sir. 0.126। कभी भी पॉइंट के बाद 126 मत बोला कीजिए, 0.126 पॉइंट के बाद हम लोग कभी भी उसको फुल नंबर में नहीं बोलते हैं, 0.126। ओके, ओके कितना सर। अंतर है? नाउ दिस मींस फीमेल एचडीआई का मेल एचडीआई की पैरिटी से डेविएशन, जो विचलन है, वो है 0.126 का। ये तो हुआ डेविएशन, ये तो अंतर आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, बताइए ये जो अंतर है 0.126 का, कितने पर अंतर है, कितने पर अंतर है, किस बेस पर अंतर है? बेस है 0.699, यही तो है। मेल से जो फीमेल का गैप है वो है 0.126, ये डिविजन तो है। इज इट ओके? बात क्लियर हुई कि नहीं? तीन बात। यस सर। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो रिस्पॉन्ड करें प्लीज, ताकि उसके साथ साथ बाकी लोग भी समझ यस सर। द डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन, जो निरपेक्ष या टोटल डेविएशन है, वो है 0.126 का। इज इट ओके? कितने पर? 0.699 पर इतना डेविएशन है। तो अगर 0.699 पर 0.126 का डेविएशन है, तो आप इसको 100 में निकाल लीजिए, परसेंटेज निकालिए, कितना परसेंट डेविएशन आएगा बताइए? क्योंकि तो 0.699 पर है, तो अगर हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे? सर बताइए कितना परसेंट आया? सर सर 1 18 के पॉइंट कंपैरिजन समथिंग में है। निकलना है। आप कितने लोग एक साथ बोल रहे हैं, मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ, प्लीज एक बोलिए। सर 18 पॉइंट समथिंग आएगा। 18% आया, बिल्कुल सही आया आपका, ठीक है, 18% आया। अब जो हम लोगों ने कल ग्रुप्स की बात की थी यूएनडीपी की, उन्होंने 5 ग्रुप बताए थे। पहला ग्रुप था हाई इक्वलिटी, जिसमें था डेविएशन लेस देन 2.5% का होगा। दूसरा था मीडियम टू हाई, जिसमें उनका डेविएशन 2.5 से 5% का होगा। तीसरा ग्रुप था मीडियम इक्वलिटी, जिसमें था डेविएशन 5.0 से 7.5% का होगा। चौथा था मीडियम टू लो इक्वलिटी, जिसमें था उन्होंने 7.5 टू 10% होगा। और पांचवा था लो इक्वलिटी, जिसमें था मोर देन 10% का डिविजन होगा। दैट वाज फिफ्थ ग्रुप। बताइए इंडिया का डिविजन कितना आया? आपने कितना कैलकुलेट किया? 18%। तो बताइए किस ग्रुप में आएगा इंडिया? सर ग्रुप 5। यही तो मैंने कहा था, फिफ्थ ग्रुप में इंडिया है। इंडिया इज इन फिफ्थ ग्रुप because the deviation from parity is more than 10%, which is actually आपने मेजर किया approximately 18%. So since 18% is in the fifth group, that is more than 10%, which shows low equality. Same method is applied for all the countries. अब बात समझ में आ गई कि नहीं? बताइए जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था। यस सर, एकदम क्लियर है। जिससे एकदम क्लियर यस है। सर। ठीक है, ऐसे अगर आप चाइना का देखें, मैंने कहा ब्रिक्स में चाइना का भी लिखा था, जो ग्रुप 2 में था। चाइना का जो फीमेल एचडीआई वैल्यू है वो है 0.744, और जो मेल एचडीआई है वो है 0.777। तो डेविएशन इज 0.033। तो अगर ये 0.033 को आप 0.77 के परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, इट विल कम 4.24%, and 4% means second group, which is
2.5 to 5%। तो चाइना का जो ग्रुप है वो ग्रुप नंबर 2 है। इंडिया का ग्रुप नंबर 5 है, बिकॉज डेविएशन इज मोर देन 10%। मेरे ख्याल से तो सबको बात बहुत क्लियर हो गई है। यस सर। यस सर। ओके, चलिए अब हम लोग जरा एक नए इशू पर आ जाते हैं, विच इज एन एक्सटेंशन अगेन ऑफ जेंडर। जेंडर पे बहुत सारे दूसरे मेजरमेंट्स भी होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। मैं उसका कभी रेफरेंस दे दूंगा आपको, जैसे जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी है, मैं उसकी चर्चा करूंगा। पहले लेट अस कम टू जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। देयर बहुत सारे दूसरे इंडेक्स भी हैं यूएनडीपी के ही, जिनमें से कुछ इंडेक्स नए हैं, कुछ इंडेक्स थोड़े पुराने हैं, लेकिन उसका रेफरेंस अभी इस पर्टिकुलर यूनिट से नहीं है, तो आप फिर उसमें उलझ जाएंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को ही हम लोग कुछ दूसरे तरह से भी देख सकते हैं, जिसको मैं आपके सिलेबस में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हेन आई डिस्कस द इश्यू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, in that reference when I complete sustainable development, then I will discuss what is sustainable HDI, which I cannot discuss right now because we have no idea of sustainability, because it's a very extensive issue। तो वहां पर मैं sustainable HDI की बात करूंगा। और जो 2020 का 2020 का HDR है, उसमें एक उन्होंने नया इंडेक्स भी इशू किया है जो इसका हिस्सा नहीं है, that is planetary pressures adjusted HDI। planet pressures, that is also a part of sustainable development। तो मैं कुछ इंडेक्स की चर्चा उस रेफरेंस में करूंगा जब हम लोग उस पर्टिकुलर यूनिट पर, पर्टिकुलर हिस्से पर डिस्कशन करेंगे। तो उसको भी हम यहाँ पे लिंक नहीं कर रहे हैं, otherwise it will be very confusing। Therefore I just want to give you some ideas about the gender issues first, and then we'll shift to other component, then we'll discuss some more interesting dimensions of development also। Is it okay? So let us just try to understand what is the meaning of GII or Gender Inequality Index। So let us have the background first कि किसने, मैंने कहा था ना, हर बार आपको जब भी कोई इंडेक्स देते हैं आपको ये जरूर जानना चाहिए कि किस ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे डेवलप किया है, पब्लिश करते हैं, और फॉर द फर्स्ट टाइम वो पर्टिकुलर इंडेक्स कब इशू किया गया। नंबर 2 बात ये होगी, देन व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ दैट इंडेक्स, देन व्हाट आर द डायमेंशंस एंड इंडिकेटर्स ऑफ दोज इंडेक्स, एंड फिर बात करेंगे कि हम उसकी मीनिंग क्या है, मेजर कैसे करते हैं, देन इंडिया स्पेसिफिक रेफरेंस में इंडिया पोजीशन क्या। तो थोड़ा सा अगर हम ये बातें देख लेंगे तो आसान हो जाएगा। दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, लैंगिक असमानता सूचकांक, GII, Gender Inequality Index। Now, this is also an index introduced by the UNDP in its Human Development Report 2010। तो हम लोग अभी तक UNDP की ही बात कर रहे हैं। We started from the HDI, then discussed GDI, and now we are discussing GII। all three published by UNDP in its various human development reports। तो GII was introduced in 2010 HDR। ग्राफ देखिए, उसमें आप ग्राउंड समझ में आ जाएगा, एंड इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। ये कहते हैं द डिसएडवांटेजेस फेसिंग women and girls are a major source of inequality। महिलाओं और बालिकाओं के सामने जो विषम स्थितियां या अलाभप्रद स्थितियां उत्पन्न होती हैं, वो
वो स्थितियां, वो चैलेंजेस असमानता के प्रमुख स्रोत। यू मस्ट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सेंटेंस वेरी क्लियरली। मैंने आपसे बार बार कहा है, when you appear for civil service examinations in IAS, you have a compulsory paper of essay in which every year one topic of essay is on the focus of women. They are women issues. Therefore, all these sentences, if you remember all these sentences, you pick the ideas, the issues and the concepts, then you will be very easily able to use all these in your essay writing also, not only for this particular paper, but it is very important. आप डिस्कशन करिएगा तो मैं बहुत डिस्कशन में करूंगा, तो I will just like to first introduce what is GII and other related issues and some very new concepts related to gender. तो मैं उसकी बात आगे करूंगा। तो मैंने यहाँ पे कहा कि first sentence was that disadvantages facing women and girls are a major source of inequality. Then UNDP elaborates, all too often women and girls and the labor market with negative repercussion for their freedoms. सेंटेंस यहाँ पे थोड़ा सा इसको इनकम्प्लीट है, मेरे ख्याल से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है इसमें। ये कहना चाहते हैं, ऑल टू ऑफन women and girls face so many challenges in their life and also in the labor market with negative repercussions for their freedom. महिलाओं और बालिकाओं को अपने जीवन में बहुआयामी बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और श्रम बाजार में भी उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनकी स्वतंत्रता के लिए नकारात्मक दबाव, बाधाएं उत्पन्न करती हैं। Not necessarily you write all these words, you just write they face, women and girls face multi-dimensional obstacles and challenges in way of their freedoms. Freedoms of decision making, freedoms of participation in many social, political, economic dimensions of lives. हम इसको आगे बात अभी करेंगे कि क्या क्या challenges हैं. The GII is a new measure of these inequalities built on the same framework as the HDI. UNDP कहता है कि GII जो एक नया आयाम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया 2010 में, HDI 1990 में इंट्रोड्यूस हुआ था. आफ्टर अ गैप ऑफ 20 years तब यू कैरी न्यू मेजर जो इन विषमताओं के आधार पर डेवलप किया गया है, जो कि उसी फ्रेमवर्क में है जिस फ्रेमवर्क में HDI, यानी वही डायमेंशंस हैं. The 3 dimensions of life, जो pillars of HDI हैं, same dimensions have been covered under GII also. उन्होंने कहा कि क्यों inequalities की बात करता है, to better expose differences in the distribution of achievements between women and men. इसका बेसिक पर्पस है GII का कि विमेन और मेन के अचीवमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण में किस प्रकार का अंतर देखा जा रहा है, उसको ये एक बेहतर रूप से व्यक्त करता है. हम ये फर्स्ट पैराग्राफ को अभी सेकंड स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि उसके क्या क्या डायमेंशंस हैं, क्या क्या इंडिकेटर्स हैं. देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड this paragraph more clearly. Now, second paragraph I have written, that is the technical part. The GII index shows the loss in human development due to inequality between female and male achievements in these dimensions. ये जो सूचकांक है वो इन आयामों में जिनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, that is life, education and income, उन आयामों में
मेल और फीमेल के अचीवमेंट के इनइक्वलिटी, असमानता कारण मानव विकास में क्या क्षति हो रही है उसको एक्सपोज करता है. And the value of GII ranges from 0 to 1. 0 to 1, which indicates if it is 0, that indicates women and men fare equally. There is no inequality between women and men, that is equal, no gap. And if it is 1, it means highest inequality between women and men. Now you just read these 2 paragraphs and tell me if you have any issue, any question. Have you any issue, any question to understand what we have discussed so far? This is just a simple background. Sir, what is negative? What is? Sir, what is negative repercussion? यानी महिलाओं और बालिकाओं के जीवन के विभिन्न आयामों में ऐसी कठिनाइयां, ऐसी चुनौतियां, ऐसी अलाभप्रद स्थितियां जो उनके स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है. Means they don't promote their freedom, but they affect their freedom in a negative manner. Loss of freedom, that is negative repercussions. नकारात्मक परिणाम होते हैं उनकी स्वतंत्रता पर. आप मीनिंग समझ रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, या इसके अंतर्गत क्या आता है पूछना चाह रहे हैं? What are you asking? Whether you want to know the meaning of negative repercussions or you want to know what are the negative repercussions? Sir, what are the negative repercussions? I told you right now. When we'll shift to next slide, when we'll look at the dimensions and indicators, you will very clearly understand what are those areas where women and girls face loss of freedoms, challenges, or negative situations for themselves. उसी की हम बात कर रहे हैं. Because everybody wants to expand freedoms. हमने जब HDI की बात की थी, हमने कहा था नहीं, फ्रीडम के बारे में बात कर रहे थे हम लोग. अमर सेन पूरे फ्रीडम को प्रमोट करने की बात करते हैं. When you say SDI, हमने कहा था SDI is the process of enlarging people's choices. It is freedom of life, freedom of education, freedom of living standard, freedom of income. तो अगर उस पर negative challenges आ रहे हैं, that is the loss of freedom or negative situation, and that is the inequalities. क्या क्या है ये तो हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं. Therefore we say lastly कि अगर GII की वैल्यू 0 है, it also range between 0 and 1 like HDI value. 0 है, it means there is no inequality between men and women. अगर 1 है, it means that is highest inequality between women and men. The lower the value of GII, lower the inequality. Higher the value of GII, higher the inequality. Where maximum can be 1 or minimum can be 0. Is it okay now? Yes. हाँ, इतने में कोई क्वेश्चन है बताएं? Now let us see what are the areas or what are the dimensions which have been covered under GII. As you know, every index includes certain specific dimensions and certain specific indicators also. Because you can think about so many other dimensions and indicators also, but you cannot include those. Because every index includes
specific number of dimensions and indicators. There are so many other possible dimensions also, but not a part of that particular index. अक्सर ये सवाल आता है, तो हम लोग बहुत बात करते हैं कि क्या HDI मानव विकास केवल आयु, शिक्षा और आय पर ही बेस्ड है, इसके अलावा भी बहुत सारे आयाम हो सकते हैं? What is your answer? सर और भी बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। देखिए, जब हम लोग when in the very beginning we were discussing the meaning of development, तो मैंने वहां पे लिखा था, मैंने 10-12 लिखे थे आपने, there are so many dimensions. Environment dimension है, poverty का dimension है, health का dimension है, so many dimensions we had measured. But every index will be based on some specific dimensions only. सबसे बड़ा एग्जांपल देते हैं कि जो हमारे देश में कैपिटल मार्केट है, उसमें से सबसे एस्टैब्लिश्ड एंड ओल्डेस्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या BSE है। और BSE का जो सबसे मेन इंडेक्स है, जिसे हम बैरोमीटर भी कहते हैं, मैंने थोड़ी ब्रीफली चर्चा की थी आपसे, दैट इज सेंसेक्स, यानी BSE सेंसेक्स। और ये सब जानते हैं, हाउ मेनी कंपनीज आर इंक्लूडेड इन सेंसेक्स? एवरीबडी नोज। 30। प्लीज सर 30। speak little loud. 30. Okay. And Nifty, NSE Nifty 5050. Now tell me, BSE and its index, because BSE also have number of measurement dimensions, but Sensex is the most important barometer measurement, जिसमें आपने कहा कि इसमें सिर्फ 30 कंपनियां, 30. Do you think that in India there are only 30 companies? No, sir. No, sir. In BSE itself, the number of listed companies, सूचीबद्ध कंपनियां BSE में, they are more than 6,000. But out of those companies, only 30 companies have been picked to reflect Sensex. Why I want to give you this reference, so that you can understand there are larger number of dimensions, larger number of indicators, but every index comprises of a specific number. Like we were giving a detail, HDI is based on only 3 dimensions, only 4 indicators, not more than that. Similarly, when you discuss any index, you must understand the structure of that particular index, that is the number of dimensions and the number of indicators also. At least HDI के डायमेंशंस पर और HDI के इंडिकेटर्स पर बहुत बार IAS PCS में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, लगातार बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ HDI। वो 4 इंडिकेटर्स दे देंगे, जिसमें 3 होंगे, 1 नहीं होगा। That you must remember also, at least for HDI. Since HDI and GDI are both on the same structure, so you understand GDI also and difference also. Now, what we are discussing in GII, it is little different from what we have discussed earlier. Now you can, because why I'm saying this, emphasizing this, because as far as gender is concerned, we have just discussed GDI. Again on gender,
we are discussing GII. But GII is different. When GDI is based on only development of women and men on base of 3 dimensions, it is different in the way that it measures the inequalities in different dimensions. That you must understand. Now let us first come to what are the dimensions, what are the indicators, what are the meaning of those indicators. Then you will understand what is the meaning of negative repercussions for the freedom of women and girls. Only then you can understand it clearly. Now let us discuss the dimensions and indicators first. You can, if you look at the dimensions, this is health, empowerment, and labor market. Three dimensions are totally different from each other. Issues are different from each other. That is why the first sentence is GII is a composite measure. Number of times I have told you what is the meaning of composite measure. Reflecting inequality in achievement between women and men in 3 dimensions. Dimensions are very clear. You can see the chart, and indicators are also very clear. There are 5 indicators under 3 dimensions. First dimension of health includes 2 indicators. Second dimension empowerment again includes 2 indicators. And third dimension of labor market includes only 1 indicator. The total 5 indicators under 3 dimensions. If you compare it with the SDI, SDI had also 3 dimensions, but 4 indicators. Those indicators were totally different, dimensions were different. Now here GII, total different dimension indicators. And I have also mentioned the scale of measurement for all these 5 indicators. Let us very briefly understand the meanings of all these 5 indicators one by one. First dimension is health. And first indicator of that dimension is maternal mortality rate, MMR. The scale of measurement is per 1 lakh live births. Per 1 lakh live births, and you understand, you know very clearly, we discussed number of times that all rates, all measurements are annual. If I have not written per 1 lakh live births in a given year, that will discuss in the meaning. So measurement scale is per 1 lakh live births for maternal mortality rate. Before going to MMR, I'd like to, from your side, what do you mean by MMR? How do you explain in your simple words? So number of It deaths is per very, very 1 important lakh. indicator. That I have written. Number of death of newborn per 1,000. So number of deaths of a mother per 1 lakh birth. All answers are wrong. Some of you said they're 1,000. When clearly it is mentioned 1 lakh, then why 1,000? I want to know the clear meaning as a layman. What do you understand by the term MMR, which is a very, very significant indicator of development and used in many measurements? किसी को अगर हमें समझाना हो, So that due to the pregnancy complications. Sir, it is the total number of maternal death according to the reproductive age of the woman. Incomplete answers and not clear meaning, because these terms are also asked in
civil service examinations also, to express in say 20 words, 30 words, short answers also, you must know the meaning very clearly. Suppose I'm just giving a question. Suppose the question is, what do you mean by GDP, gross domestic product, that you have already studied in paper 1. Define clearly GDP, say in 20 words or Sir, 30 words. Goods and services produced in a country during a year. Incomplete answer. Final good. If it is Sir, a final question good of 5 answer marks, before I in will a give year. only 2 marks. Sir, final good Wrong answer. answer. Wrong answer. The value of all During a goods and financial services produced within Wrong a answer. Wrong financial answer. year. Wrong answer. Wrong answer. Wrong answer. So the market Sir, all value Wrong of answer. all final goods Wrong and answer. services. Indian territory. Wrong answer. They are not asking the meaning of GDP for India. It is a universal concept. So why are saying Indian territory? And if I ask you what is Indian territory, then how will you explain in terms of GDP? ये आपने पेपर 1 में चैप्टर 1 में पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं. दैट इज व्हाई व्हाट आई वांट टू नो, हाउ डू यू अंडरस्टैंड एंड हाउ यू वांट टू राइट. सर जीडीपी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों इंक्लूड किया जाता है. और जीएनपी में क्या करते हैं? जीएनपी में सर जीडीपी क्लोज्ड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. कहाँ से आपने क्या क्या पढ़ लिया भाई? आप हम तो सोच रहे आपने पेपर 1 पूरा तैयार हो गया होगा. ये तो फर्स्ट चैप्टर ही आपने डिटेल में पढ़ा है. मेरे ख्याल से 8-10 लोगों ने आंसर दिया, लेकिन सबका आंसर या तो इनकम्प्लीट है या तो रॉन्ग है. माय इशू हियर इज टू डिस्कस एमएमआर, but why I am asking the question, so that you can understand very clearly the meaning of each word also. When the question is to define GDP in 20 words or 30 words, you, in your answer writing, you must clearly mention the meaning of G, meaning of D, and meaning of P also. But none of you have expressed your answer covering all these 3 words. That is, you have never mentioned what is gross. You have never mentioned what is domestic, and you have never mentioned what is product clearly. So GDP is the total market value of all final goods and services produced in a domestic territory. Why are you? Who said it is market value? Who said it is market value? Who said it is market value? It is not market value. Okay, suppose it is market value. Then again please repeat your answer. So it is the total market value of all final goods and services produced in a domestic territory of a country. Okay, suppose this is the answer. Where you have explained the meaning of gross in this answer? Where you express the meaning of gross? Gross means total hota hai na? No, not at all. Then what is net? Such it is net NDP. Then what you write? अगर मान लिया नेट, तब क्या लिखते हैं आप? अगर ग्रॉस का मतलब टोटल है, तो नेट का मतलब क्या है? What is difference between GDP and NDP? दोनों तो एक ही कंसेप्ट में हैं. One term is GDP, one term is NDP. The only difference between these two terms is gross and net. Difference between gross and net. Then if you say that gross means total, then tell me please, what is the meaning of net? माइनस डेप्रिसिएशन. तो आपके आंसर में डिप्रेशन शब्द तो आया ही नहीं था, तो आप हम कैसे जान लेंगे माइनस डिप्रेशन कह रहे हैं आप या प्लस डिप्रेशन कह रहे हैं? ये कहाँ आया आपके आंसर में? कहाँ आया?
तुरंत आप सोचेंगे मैं तो पूरा आंसर लिखा था, और आपको आउट ऑफ 5 2 नंबर मिलेंगे, एंड यू आर आउट ऑफ रेस. दैट इज सर ग्रॉस मीन्स तो टोटल होता है, तो वैल्यू ऑफ ऑल की जगह टोटल अगर ग्रॉस का मतलब टोटल होता है तो मुझे नेट का मतलब बता दीजिए ना. नेट का मतलब बता दीजिए, फिर नेट का मतलब क्या होता है. ग्रॉस हिंदी में है समग्र या सकल, नेट में है शुद्ध या निवल. क्या अंतर है दोनों में, बता दीजिए मुझे अंतर. मैंने दोनों भाषा में पूछा आपसे, बताइए ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है. सर सकल में पूरा आएगा और निवल में तो कुछ पार्ट्स आएंगे. निवल में थोड़ा सा आएगा, निवल में थोड़ा आएगा, सकल में पूरा आएगा. सर एनडीपी का मतलब होता है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन. तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन तो पूरा आया कि नहीं इसमें आया, पहले बताइए. यस सर. तो फिर पूरा अधूरा आप क्यों कह रहे हैं भाई. Gross simply means without depreciation, और net simply means after depreciation. Without और after शब्द अगर समझ ले तो आपको gross और net का मतलब समझ में जाएगा. दोनों कंसेप्ट टोटल हैं. सर उसके बिना उसके बाद. बिल्कुल. पहले आप देखिए, सबसे पहले आइए तीनों शब्द पर. हम लोग एकदम ड्रिफ्ट कर गए अपने मेन इशू से. आई वांटेड टू टेल यू व्हाट इज मैटरनल, व्हाट इज मोर्टेलिटी, व्हाट इज रेट. देयर अगेन हियर वी हैव 3 words. Similarly, because you have not gone through MMR but you have gone through GDP, you know what is GDP but you are not able to express very clearly. Therefore none of your answers was perfect, incomplete answer or wrong answer. So you should make yourself correct, and you can make yourself correct only when you understand the meaning of every term very clearly. The word was, which has been, the question has been asked number of times in civil services. Define GDP, or differentiate between GDP and NDP. Then we come to GNP and NP also. But GDP is the base. You keep on adding or subtracting any other element, you get the meaning of NDP or GNP or NNP. Base is GDP. Now, if you want to explain the meaning of GDP, let us pick all the 3 words. Tell me, what do you mean by P or product? How you explain the product? It is a commodity. No, in terms of GDP. In terms of GDP, I'm asking in terms of GDP, how you explain the meaning of product? Final goods and services. Final products. Okay. Sir, final goods. And what do you mean by final? If you say final, what do you mean of final? Outcomes. Sir, no further use. Sir, direct consumption. No. Again wrong. If you say no further use, no further direct use. सब प्रोडक्शन के बाद डायरेक्ट कंजप्शन हो तो उसको फाइनल. No, totally wrong. Sir, फाइनल गुड्स का मतलब फर्दर प्रोडक्शन में यूज ना हो. Total outcome, sir. Wrong. So not pass any more stages of production. Now suppose I give you a very simple example. You understand what is the meaning of products. That means goods and services. By product means goods and services. Say there is a farmer working in the field and he has produced wheat. एक किसान ने गेहूं का उत्पादन किया. Suppose it is 10 kilogram of wheat. Similarly, you can have examples of different producers producing different items, some different commodities, some different services, etc.
Now tell me, suppose there are 3 producers. One is farmer producing wheat, one is a weaver producing cloth. Suppose there are only two. कपड़े का उत्पादन हुआ, गेहूं का उत्पादन हुआ. Suppose 10 kilogram wheat and 5 meter cloth. You can keep on adding 2 liter of oil, 10 kilowatt of electricity, etc. You can keep on adding so many different items under goods and services. Suppose I make it very simple, 10 kilogram of wheat and 5 meter of cloth. This is total products that have been produced. Now tell me, what is the total? If you add these two, what is the total? 10 kilogram wheat and 5 meter of cloth. What is the total production? Including raw material. नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं. हमने आपके सामने एग्जांपल दिया. 10 किलोग्राम गेहूं उत्पादन हुआ है, 5 मीटर कपड़ा उत्पादन हुआ है. बताइए कुल उत्पादन कितना हुआ? सर मॉनेटरी वैल्यू में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा. यस, दैट इज द एसेंस. यानी आप अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज को उनके मेजरमेंट्स यूनिट में, मेजरमेंट स्केल में ऐड नहीं कर सकते. You cannot add 10 plus 5 plus 2 plus, because every item is measured in the scale. ये तो क्लियर है बिल्कुल. इसका मतलब है प्रोडक्ट्स जब हम कहते हैं तो इन प्रोडक्ट्स की मॉनेटरी वैल्यू को हम मेजर करते हैं, नॉट द फिजिकल क्वांटिटीज, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड द फिजिकल क्वांटिटीज. यू कैन ऐड ओनली मॉनेटरी वैल्यूज. ये बात समझ में आ गई पहली बात. नंबर 2, टेक फर्स्ट एग्जांपल. मैंने कहा किसान ने गेहूं प्रोड्यूस किया. सपोज उसकी मॉनेटरी वैल्यू है 50 रुपीज. 50 रुपीज. और उसका ये गेहूं एक फ्लोर मिल ने ले लिया, एक आटा मिल ने ले लिया, आटा चक्की ने ले लिया. जब फ्लोर मिल उसको ले लेगा तो बताइए 50 के गेहूं में वो कुछ ऐड करेगा वैल्यू या ऐड नहीं करेगा? ऐड करेगा. बिल्कुल ठीक है. यानी अब फ्लोर मिल वाला अपना फैक्टर्स लगाएगा उसमें. किसान ने अपना फैक्टर्स लगाया था, उसने जमीन लगाई थी, उसने अपना लेबर लगाया था, तमाम चीजें लगाई, ट्रैक्टर लगाया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इसी तरह से कुछ फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन फ्लोर मिल भी करेगा. उसने मशीन लगाई, उसने मजदूर लगाए, एंड सो ऑन. और सपोज उसने जो फ्लोर प्रोड्यूस किया, जो आटा बनाया, उसकी मॉनेटरी वैल्यू है 80 रुपीज, 80 रुपए. अब इस फ्लोर को, आटे को एक बेकरी वाले ने ले लिया. बेकरी, उसने उसको ब्रेड में कन्वर्ट कर दिया. नेचुरली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो भी तो कुछ ऐड करेगा, वैल्यू ऐड करेगा. Suppose now the bread has been produced by the bakery and monetary value of bread is rupees 100. 100. मान लीजिए हमारे मेजरमेंट टाइम का ये अंतिम समय आ गया. This is last time, last date of measurement period. Now in our example, simple example, we have taken 3 different producers, 3 different products and 3 different stages. One was farmer, rupees 50. One was flour mill, rupees 80. One is bakery, rupees 100. 3 तरह के उत्पाद हुए, 3 अलग अलग स्तर पर योगदान दिया गया. और ये आपके सामने कंप्लीट पिक्चर मैंने रख दी. अगर मैं आपसे अब पूछूं, टेल मी व्हाट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स under the consideration in this example. कुल कितना मूल्य है? 100 rupees. 100 rupees, sir. 100. Everybody says 100. Yes, sir.
क्यों? Why 100? Just tell me why 100, because I have, in my example, I have 3 different products and 3 different values. The total value of that product. Product नहीं, in my example there are products, not product. हमारे एग्जाम्पल में 3 उत्पादों का जिक्र किया है मैंने, एक उत्पाद का जिक्र तो नहीं किया है। अब मैं पूछ रहा हूं कि बताइए समग्र उत्पादों का मूल्य जब हम जोड़ेंगे अपने जीडीपी कंसेप्ट में, तो वो मूल्य कितना होगा? सर 100। क्यों? अच्छा, क्यों होगा 100? बताइए मुझे 100 क्यों होगा? सर 50 वीट का हो गया। हाँ सर 30 हो गया सर फ्लोर मिल का। सर फ्लोर मिल का, और सर 20 बेकरी वाले का। बेकरी का तो 100 रुपीज का ब्रेड है, फ्लोर मिल का 80 रुपए का आटा है, और वीट 50 रुपए का है। सर वीट की डबल काउंटिंग हो जाएगी। यस, ये अब आपने बात कही। यस सर। इसका मतलब है कि जब भी हम लोग कोई भी मेजरमेंट, कोई भी गणना करते हैं, कभी भी हम जोड़ते हैं, तो वी नेवर काउंट वन आइटम मोर देन वन। क्या हम लोग किसी आइटम को एक से अधिक बार गिनते हैं अपनी गणना में? नो सर। नो सर। मान लिए आपके सामने 5-6 चीजें रखी हुई, आपको गिनना बताइए कितनी चीजें हैं, तो आप एक चीज को तो एक ही बार गिनेंगे, 2 बार तो गिनते नहीं है। इसीलिए जो मैंने एग्जांपल दिया आप देखेंगे, ब्रेड में फ्लोर शामिल है, ब्रेड में आटा शामिल है, आटे में गेहूं शामिल है। जब आपने गेहूं को गिना एक बार 50, जब आप उसी गेहूं को आटे के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, 80 का आटा, तो 80 के आटे में तो 50 पहले ही आप गिन चुके हैं, दोबारा गेहूं क्यों गिनेंगे? In my example, wheat comes at 3 different levels. At the level of wheat production, flour production and bread production. तो हम क्या गेहूं को 3 बार गिने या एक बार गिनना चाहिए? एक बार। Only one? It means wheat का काउंट हुआ 50, चूंकि 80 के आटे में 50 ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, इसलिए आप केवल वैल्यू एडिशन जोड़ रहे हैं, 80 - 50 दैट इज 30। तो फ्लोर मिल के स्टेज पर जो फैक्टर कंट्रीब्यूशन है वो 30 का है। अब 100 में 80 का फ्लोर शामिल है, फ्लोर को आप पहले ही गिन चुके हैं, इसलिए फ्लोर मिल से जब वो बेकरी में गया तो वैल्यू एडिशन इज ओनली 100 - 80 = 20। इट मींस टोटल values are 50 plus 30 plus 20 = 100। ये तो आपका जवाब था, ऐसे आपने किया भी होगा अपने हिसाब से। मेरा कहने का मतलब ये है, इसका मतलब है हम लोग जब प्रोडक्ट लिख रहे हैं जीडीपी में प्रोडक्ट, तो हम लोग ये लिख सकते हैं टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स विदाउट डबल काउंटिंग। खाली हम लोग मॉनेटरी वैल्यू प्रोडक्ट्स लिखें या लिखें टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स विदाउट डबल काउंटिंग? कौन सा सेंटेंस सही है, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड वाला। सेकंड। विदाउट डबल काउंटिंग आप लिखें, चाहे उसी को लिखें द फाइनल प्रोडक्ट्स, बात एक ही है। आप चाहे विदाउट डबल काउंटिंग यानी दोहरी गणना के बिना लिखें या अंतिम लिखें, दोनों बात एक ही है, अंतर नहीं है। नाउ जो आपको एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, आपने कहा कि वो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है। अगर मैं इस एग्जांपल को शुरू करता तो बताइए कि जो भी हम ये काउंटिंग कर रहे हैं, अपने काउंटिंग कर रहे हैं, ये किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंतर्गत है या कभी भी कहीं से कहीं तक काउंट कर रहे हैं? सर स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक टाइम पीरियड है पीरियड ना, टाइम पीरियड है, एंड दैट इज फाइनली एनुअल। फाइनली एनुअल, यू कैन मेजर इट क्वार्टरली ऑल्सो, पहले से हमने बहुत बार बात की, बट इट इज फाइनली एनुअल। तो इसका मतलब है अगर हम सपोज कैलेंडर ईयर ले रहे हैं, मान लीजिए, इट मींस
starting from 1st January ending to 31st December. तो अगर हम इस साल का मेजरमेंट कर रहे हैं 31 दिसंबर तक का ही तो मेजरमेंट करेंगे. इज इट वेरी क्लियर कि नहीं? सपोज वी आर मेजरिंग जीडीपी फॉर year 2020 and that is from 1st January 2020 to 31st December 2020. अगर ये है तो ये जो एग्जांपल हमारा था फार्मर देन फ्लोर मिल देन बेकरी, इसका मतलब है जो लास्ट में ब्रेड था वो 31 दिसंबर 2020 तक की तो बात हम कर रहे थे या उसके आगे बात करें? बताइए. नो आंसर. 31 दिसंबर तक बात करें. चलिए अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट दे रहा हूं आपके क्वेश्चन, अपने एग्जांपल को. मान लीजिए जो बेकरी वाला था, हम लोग एग्जांपल चेंज कर दे रहे हैं. बेकरी वाले ने आटा खरीदा था ब्रेड बनाने के लिए. मैं वैल्यूज चेंज कर दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो. और आखिरी दिन 31 दिसंबर को उसका ब्रेड बना 500 रुपीज का और उसके पास 100 रुपए का आटा भी बच गया है. जो उसने ब्रेड उसको नहीं बनाया, उसके पास आटे का बैग रखा हुआ था, आटे का बैग रखा हुआ है जिसकी वैल्यू 100 रुपए की है और ब्रेड बनाया उसने, ब्रेड की वैल्यू 500 रुपए की है. ये है 31 दिसंबर. अब नेक्स्ट डे शुरू हो गया 1 जनवरी. बताइए वो आटा जो बच गया था 31 दिसंबर 2020 को, वो आटा वो अगले दिन 1 जनवरी या 2 जनवरी या 3 जनवरी को उसको इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर. करेगा सर. करेगा. क्लियर है बिल्कुल. तो उस आटे से वो ब्रेड बनाएगा अगले बार. ठीक है. सपोज अगले साल यानी आफ्टर दिसंबर 31 उसने 100 रुपीज के आटे को 150 रुपीज के ब्रेड में कन्वर्ट किया है. हर एग्जाम्पल बहुत क्लियर सुनिए तो आपको मिसकंसेप्शन दूर हो जाएगा. 100 रुपीज के आटे को 150 के ब्रेड में कन्वर्ट किया है और सिर्फ यही प्रोडक्ट है अगले साल का. मान लीजिए हम यहीं पे आकर रोक दे रहे हैं अगले साल को 2021. तो मुझे बताइए 2021 में प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है? 2021 में 50 सर. 50 रुपीज. मुझे दो आंसर मिल रहे हैं. एक ने कहा 50 रुपीज, एक ने कहा 150 रुपीज. एनी अदर आंसर? अच्छा मैंने एक एक करके पूछता हूं. जिन्होंने 150 रुपीज कहा, बताइए आपने 150 क्यों कहा? कुछ तो सोचा होगा आपने ना, क्यों कहा? टोटल वैल्यू ऑफ ब्रेड है 150 टोटल वैल्यू ब्रेड है. इसमें आटा कितने का है 150 में? 100 रुपीज. 100 रुपीज का. बताइए कि ये आटा जो 100 का है ये 2021 का प्रोडक्शन है या 2020 का प्रोडक्शन है? सर 2020 का है. तो फिर आप इसको 2021 में क्यों गिन रहे हैं? अगर गिन रहे हैं तो क्या आपने उस आटे को 2020 में नहीं गिना या गिना होगा? गिना होगा. जिस ईयर में कंज्यूम करेंगे उस ईयर में गिनेंगे. बस यही कंफ्यूजन है आप सब लोगों को. आप सबको यही कंफ्यूजन है. हमने ये किसने कह दिया कि जीडीपी मींस कंजम्पशन? जब आप लिख रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आप बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की, अब जवाब दे रहे हैं कंजम्पशन का. क्यों ये कंफ्यूजन है आपको भाई? आप प्रोडक्ट की वैल्यू मेजर कर रहे हैं, आप कंज्यूम की वैल्यू कहां मेजर कर रहे हैं भाई?
ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है और इसमें 80% लोग रॉन्ग आंसर लिखते हैं. प्लीज डोंट कमिट सच मिस्टेक्स. अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. ये बताइए मुझे फिर सोचकर, ये जो 100 रुपीज का आटा है वो 2020 का प्रोडक्शन है या नहीं है? बस हाँ या ना बताइए. है सर, प्रोडक्शन है. अगर है तो क्या इसे 2020 में ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे. करेंगे. भाई जिस साल का उस साल तो उसको गिनेंगे. तो जब आपने 2020 में आटे को एक बार गिन लिया है पहले ही, तो 2021 में क्या दोबारा गिनेंगे उसे? नो सर. नो सर. तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि वो 2020 में कंज्यूम हुआ है? भाई you are counting the production of a given time period. And in this example, 100 rupees flour is not a production of 2021. It is a production of 2020. And if it is a production of 2020, you should count it in 2020. मैंने इसलिए एग्जांपल देके आपको कंफ्यूज किया था कि आप समझने की मिसकंसेप्शन क्या होता है. लेकिन जब वो आटा अगले साल जाएगा तो अगले साल का 2021 का जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ 50 रुपया है, क्योंकि फैक्टर्स 2021 के कंट्रीब्यूशन केवल 50 रुपीज का है, नॉट 150, बिकॉज 100 इज द फैक्टर कंट्रीब्यूशन ऑफ 2020, नॉट 2021. इसलिए प्लीज ये याद रखिए कि जिस साल का प्रोडक्शन है, और प्रोडक्शन वही प्रोडक्शन हम गिनते हैं जिसमें उसी साल के फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन हुआ हो. अगर किसी प्रोडक्शन में फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं है उसी टाइम पीरियड के, तो हम उसे प्रोडक्शन में काउंट नहीं करते हैं. बताइए कुछ बात क्लियर हुई कि नहीं? यस सर. यस सर. अब बताइए कि 31 दिसंबर को आपके सामने एग्जाम्पल में दो चीजें हैं, ब्रेड है और आटा है. बताइए ब्रेड 2020 का प्रोडक्शन है कि नहीं? यस सर. है. आटा 2020 का प्रोडक्शन है कि नहीं? यस सर. दोनों को हम गिनेंगे कि नहीं? यस सर, गिनेंगे सर. दोनों गिनेंगे. अब सुनिए, मेरी बात समझ में आ जाएगा. यहां पर जो ब्रेड है वो फाइनल प्रोडक्ट है, और यहां पर जो आटा है वो भी फाइनल प्रोडक्ट है. अगर गेहूं होता तो वो भी फाइनल प्रोडक्ट होता है, क्योंकि फाइनल का मतलब है जो उसका फाइनल शेप है, उसका जो फाइनल रूप है, अर्थात विच हैज नॉट बीन यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन सम अदर प्रोडक्ट. जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु में आंतरिक घटक के रूप में उपयोग न कर ली गई हो, तब तक वही उसका अंतिम रूप होता है. हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जो चीज खाने लायक हो गई वही हम गिन रहे हैं. नो, हियर ब्रेड इज फाइनल, फ्लोर इज फाइनल, wheat is final, cement is final, brick is final, everything is final unless it is used as intermediary in some other product. तो जब तक आटा आटे के रूप में है तो आटा ही फाइनल है. हाँ, जब ये ब्रेड में मिल जाएगा, अपना रूप खो देगा, तब उसको हम इंटरमीडिएट रूप के निकाल देंगे. Then it will no double counting. Is it okay now कि नहीं? फाइनल का मतलब क्या है? तो फाइनल का मतलब ये नहीं कि जो खाने योग्य होंगे वो फाइनल है. तो ऑल अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उनकी फाइनल काउंटिंग डे को वैल्यू भी हम काउंट करते हैं. इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल ब्रेड और आटे का दिया, ताकि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए कि जो खाने लायक है वही हो जाएगा अंतिम. कोई भी, जैसे सीमेंट प्रोड्यूस हुआ, सीमेंट हमेशा एज इंटरमीडिएट फॉर सम अदर कंस्ट्रक्शन वर्क लगेगा. तो जब तक सीमेंट सीमेंट के रूप में है तो वही उसका फाइनल रूप है. हाँ, जब वो कंस्ट्रक्शन में खप जाएगा तब उसको हम दोबारा काउंट नहीं करेंगे, तो हम कंस्ट्रक्शन वैल्यू एडिशन काउंट करेंगे उसकी, क्योंकि हम सीमेंट एक बार गिन चुके होंगे. टेल मी वेदर एग्जांपल इज वेरी क्लियर और नॉट? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. That is product means, अब हम एक एक वर्ड को थोड़ा सा एक्सपेंड कर बता रहे हैं. प्रोडक्ट मीन्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ goods and services produced without double counting.
ये तो हुआ ना, वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जिसे दोहरी गणना के बिना मापा गया हो, या यू कैन राइट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स, बात दोनों एक ही है। फाइनल मीन्स विदाउट डबल काउंटिंग, विदाउट यूजिंग इंटरमीडियरीज एक्सेट्रा। ये तो हो गया मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट। इज इट ओके? व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट? Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. But I am not supposed to teach you paper 1. अच्छा, tell me what is gross? I told you, जब वही सेंटेंस है, gross means this valuation has been done without depreciation. Without depreciation. और net means this valuation has been done after depreciation. यानी जो भी आपने मूल्य गिना अभी, मान लिया आपने कहा हम एग्जांपल में 100 रुपीज वैल्यू है ग्रॉस, 100 रुपीज वैल्यू है ग्रॉस, विदाउट डबल काउंटिंग फाइनल वैल्यू 100 रुपीज है। लेकिन आप ये सोचिए, सिंपल एग्जांपल, अगर ये 100 रुपए जिसमें ट्रैक्टर भी लगा होगा, फ्लोर मिल की मशीन भी लगी होगी, बेकरी वाले की मशीन भी लगी होगी, बताइए इन कैपिटल इक्विपमेंट्स की भी कोई लाइफ होती है कि नहीं? Yes. Yes, sir. सपोज, सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज इसमें जो मशीन लगी हमारे पूरे एग्जांपल में, वो मशीन है 50 रुपए की, जो 5 साल चलेगी। 5 साल चलेगी, इसका मतलब है हर साल 10 रुपीज घिस जाएगा, डिप्रिशिएट हो जाएगा, कैपिटल कंज्यूम हो जाएगा, टूट फूट हो जाएगा, रख रखाव हो जाएगा, कोई भी यूज कर सकता है डिप्रिशिएशन, मूल्य ह्रास हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिप्रिशिएशन इन 1 ईयर इन आवर एग्जांपल? 10. और व्हाट इज द ग्रॉस वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन एग्जांपल में हमारे? 100, sir. 100। तो जब आप डिप्रिशिएशन अभी नहीं डिडक्ट कर रहे हैं तो ग्रॉस वैल्यू है 100। जब आप 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो नेट वैल्यू आएगी 90। Therefore, net value is always smaller than gross value. And difference between these two is depreciation और capital consumption, पूंजी भोग या मूल्य ह्रास या घिसावट या टूट फूट, जो भी शब्द आप यूज कर लें, that is the meaning of gross and net. यानी हर बार दोनों में हम टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स मेजर कर रहे हैं, बट एक बार हम डेप्रिसिएशन के बिना मेजर कर रहे हैं, दूसरी बार डेप्रिसिएशन के बाद मेजर कर रहे हैं। तो आपको ग्रॉस सब समझ में आ गया कि नहीं? व्हेनेवर you are required to write GDP, so you must clearly mention what is the meaning of gross. So I can say here the term gross means that this value has been measured without deducting depreciation. और अगर नेट होता तो मैं लिखता here the term net means that this value has been measured after deducting depreciation. So only the change of one word, without and after, that is the difference between gross and net. बताइए बहुत क्लियर है कि नहीं? एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो फिर अगर क्रिस्टल क्लियर है तो हम लोग आज क्लास यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं. I am getting a very important phone calls ringing again and again. हम इसको कंटिन्यू करेंगे. हम तो आज दूसरे, अभी हमने उसको डोमेस्टिक नहीं बताया, बिकॉज डोमेस्टिक मुझे थोड़ा टाइम लगेगा बताने में. इट विल टेक एटलीस्ट 15 मिनट टू टेल यू व्हाट इज डोमेस्टिक जीडीपी में. देन आई विल टेल यू हाउ कैन यू राइट द मीनिंग ऑफ जीडीपी इन 20 वर्ड्स. 20 शब्दों में लिखना सिखा दूंगा आपको. इसलिए पहले मीनिंग बता रहा हूं, देन यू कैन अंडरस्टैंड एमएमआर एंड बाकी लिखा सब बहुत आसानी समझ जाएंगे. तो I think, I don't know, I'm not sure. Suppose there is a holiday on Tuesday. There is some festival on Tuesday also, I think. I'm not sure about Yes, it. sir. Yes, sir. If it is closed on Tuesday, university is closed on Tuesday, then we'll have a class on Tuesday at same time 9 o'clock. Is it okay?
Yes, sir. Sir, I have a question. And that day I will tell you again come back to GDP and again start GII. I have not even touched GII today because we discussed so many things back. Sir, I have a question. Yes. सर शेयर मार्केट कब पढ़ाएंगे? कब पढ़ाएंगे? जब हम लोग अपने कुछ हिस्से अपने सिलेबस के कंप्लीट कर लेंगे तब पढ़ाएंगे. पढ़ा दूंगा मैंने वादा किया पढ़ा दूंगा. सर 1-2 एक्स्ट्रा क्लास लेके सर पढ़ा दीजिए. हम रोज एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं. शायद कोई दूसरा टीचर एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले रहा होगा. एवरी डे आई हैव टेकन एक्स्ट्रा क्लास ड्यूरिंग दिस हॉलिडे. यस सर, पूरी यूनिवर्सिटी बंद है इस टाइम. In spite of my very big festival, but I have make it a point that I must continue extra classes. मैं इसीलिए ले रहा हूँ ताकि कुछ समय अगर बच जाएगा तो हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी पढ़ सके, एक्स्ट्रा बातें भी कर सकेंगे. और एवरी डे आई एम टेकिंग एक्स्ट्रा क्लास इन एक्स्ट्रा क्लास. द एक्स्ट्रा क्लास टुडे वाज GII और उसमें भी एक्स्ट्रा क्लास होगा GDP. बताइए एक्स्ट्रा क्लास में एक्स्ट्रा क्लास नहीं हो गया हमारा? Yes sir. And you always drag me to extra in extra by asking so many questions. But I think it is very important to understand all these issues very clearly. Only this you enjoy economics when you understand the meaning, because there's a lot of confusion. 90% students have so confused that they don't understand the exact meaning. And this is, if you understand these meanings in the simplest manner, then it will be very easy to crack civil services. That I can tell you. This is my method of teaching, that I want to make it very, very clear that from grassroots level, from zero, to take it at the highest level. That is 0 to 1. Okay. Then you enjoy your Sunday. Thank you, sir. Meet on Tuesday. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.